Good evening and welcome to Breaking Views on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, there have been fresh raids as far as Chhattisgarh is concerned in the coal scam case. Now, these raids, which started yesterday, these raids have also, in fact, raised some political questions. In fact, it has opened a political front between the BJP and the Congress party, once again accusing the BJP of using the central agencies to arm twist the opposition parties. That's going to be the top focus today on Breaking Views. These raids which have taken place in Chhattisgarh ahead of the big Congress conclave, is it due process or political vendetta? We'll be joined by the Chief Minister of Chhattisgarh in just a short while from now. But let me first, very quickly, give you some context as far as these raids are concerned. Now, these raids come at a time when the Congress is preparing for their plenary session this weekend, 2 days after electing a new president. This is the big Congress conclave brainstorming session which is going to take place in Chhattisgarh, in Raipur. Chhattisgarh is the state which is ruled by the Congress party. Now, the Enforcement Directorate raided at least a dozen premises of Congress MLA, Devendra Yadav from the Durg and Chandradev Rai from the Bhilaigarh constituencies. Other people related to the Congress party have also been raided in this entire fresh, in fact, the fresh wave of the raids of the Enforcement Directorate. Now, these raids, as I'm telling you, comes just 3 days ahead of the Congress plenary session, which is on 24th and 26th. The ED says that it is probing the alleged kickbacks in coal levy, about 52 crore, that went to senior leaders of the political party, of the Congress party. They are saying that 4 crores went to some Congress MLAs as well, and also to people close to the Chief Minister in the Congress-ruled state of Chhattisgarh. The Congress and the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, put out tweets and reacted to this, calling this attack by the BJP as an act of frustration. This opened a war of words between the Congress and the BJP. While the Congress party's communication in charge, Jairam Ramesh, took on the BJP, none other than the Finance Minister Nirmala Sitharaman defended the government. Listen in. This is clearly the politics of vendetta, politics of vengeance, politics of harassment, and this is supposed to be a curtain raiser for the 85th plenary of the Indian National Congress. We are not afraid. We have nothing to hide. We will not be intimidated. If anything, these raids have given us a booster dose to be even more aggressive against the Prime Minister and his third-rate politics of vengeance, vendetta, harassment. Investigative agencies, ED, CBI and everybody else do their huge big homework for quite some time, and only when they have necessary prima facie material in their hand. So instead of accusing of vindictiveness, they should probably explain to the people and in its own plenary as to why their party chiefs are by the court on bail on matters of mismanaging party funds towards their own whatever personal dynastic funds. So Congress party on corruption should not speak at all and then bring in the angle of vindictiveness. It's a shame. Now, for those uninitiated, you are hearing the political voices. But let me very quickly also inform you what is this coal scam. What is the allegation which the Congress government and many leaders of the Congress party in Chhattisgarh, what are they facing? Very quickly, just give you a sense of the coal scam. The coal levy scam, in fact, the Enforcement Directorate is probing the illegal levy on coal. It's like a commission. Illegal levy on Chhattisgarh coal, which, according to the Enforcement Directorate, it went to the transport babus, businessmen, politicians. All of them are involved. The Enforcement Directorate is probing post in the Income Tax Department complaint that rupees 25 crores were extorted per ton of coal as far as this scam is concerned. Now, the scam generated almost 2 to 3 crores daily
and 540 crore rupees were extorted in the last 2 years. That is the crux, basically, the explainer on what is this cold scam and why is the Enforcement Directorate alleged cold scam, let me say it, because everything has to be proved in the court. But while the ED is doing its job, and many would say, what's harm? What's wrong in the Enforcement Directorate conducting their inquiries? The opposition has been making the charge, and the Congress says that the entire focus is only against Congress-ruled states. There has been a multiple-fold jump in the opposition leaders from 2014 onwards who have been on the radar of central agencies. Let me explain this with this example. Now, take a look at how the central agencies, the opposition claims, is going after the opposition leaders. Many, in fact, in Maharashtra, Anil Deshmukh, NCP, there is an ED, CBI probe in money laundering cases and corruption cases, which is going on as far as Anil Deshmukh is concerned. He was, when he was arrested, post that, you know, what happened in the politics of Maharashtra and the fall of the government there. Nawab Malik, another NCP leader, ED is probing money laundering cases linked to Dawood Ibrahim. Sanjay Raut, Shiv Sena leader, Enforcement Directorate is probing his, his involvement in the Patrachal case, in the PMC bank scam, in which the court, in fact, really went after ED while giving him the bail. Now, come to Delhi. Manish Sisodia, CBI probe in the liquor scam. Satyendra Jain, ED, CBI probe in the money laundering case. And meanwhile, if you go to Bihar, Lalu Prasad Yadav, Tejaswi Yadav, RJD, from RJD, Enforcement Directorate, CBI probes are on in money laundering and corruption cases. Meanwhile, in Jharkhand also, Pankaj Mishra of the JMM, Chief Minister Hemant Soren's aide, was arrested in illegal mining case as well. Come to West Bengal. In West Bengal, Partha Chatterjee of the TMC is being probed in the teachers' recruitment scam case. Anubrata Mandal of TMC also being probed by the CBI in cattle smuggling case. Abhishek Banerjee, the face of the TMC after Mamata Banerjee, CBI ED probes in Bengal coal scam case going against him as well. Most of you would be saying, you know, if these people have done something wrong, yes, action should be taken. Absolutely. But is the action uniform? Because the enforcement directorates, if you look at their conviction rate, it's just 0.41%. It's less than 1%. So for all the cases that they, in fact, go ahead, they're not able to prove anything in the court. It's less than 1% conviction rate. And the other charge, which is being made on the Enforcement Directorate and the central agencies, is that once somebody switches over to the BJP, these agencies, which work as an arm-twisting unit, then they let off. Then there is no heat, there is no steam on the people, those who are possibly in opposition or leaders from the BJP when it comes to the central agencies. Let me give you some examples. B.S. Yediyurappa, their central agencies, in fact, were probing him in mining and land scams. The CBI probe so far, inconclusive. Reddy brothers of Bellary, accused in 16,500 crore mining scam. CBI closed the case in 2017. Hemanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, accused in the bribery scandal, probe stopped after he joined the Bharatiya Janata Party. Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, under his regime, he was under the scanner as far as the Vyapam scam is concerned. CBI clean sheet in 2017. Ramesh Pokhriyal, accused in the land scam case, no probe has been done. Narayan Rane switched to the BJP. He was already accused in a 3,000 crore money laundering racket. Probe stopped after he joined the Bharatiya Janata Party. Shubhendu Adhikari, accused in the Narda case, probe going nowhere after he joined the Bharatiya Janata Party in 2020. That is why the question whether the central agencies are doing their job in all fairness and against everybody without any favor or fear. Now, remember, Prime Minister Narendra Modi made that statement in the Parliament where he said Enforcement Directorate has come together, has brought all the opposition parties together. The BJP saw this as a sharp attack on the opposition. The opposition said this is acceptance by the Prime Minister that ED is being used by the central government. Listen in. सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे।
लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। So that is why the question is being asked, is the ED only or the central agencies being used as an arm twisting tactic? And why, why is Chhattisgarh on the radar right now? Is it just because of the Congress plenary session? Or is the opposition crying foul after they are being exposed of corruption? Let me very quickly on this, ladies and gentlemen, go across to the Chief Minister of Chhattisgarh, who is joining us live at this moment on Breaking Views. We are being joined by Mr. Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh. Sir, thank you so much for taking out the time and speaking to NDTV. I want to start by asking you, sir, Enforcement Directorate ने जो छापे आप छत्तीसगढ़ में किए हैं, रायपुर में किए हैं, आपके भी करीबी लोगों के लिए ऊपर हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए ड्यू प्रोसेस है, कोल स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, उसको क्यों कांग्रेस पार्टी अपने प्लेनरी सेशन से जोड़ के देख रही है? देखिए, ये घटना जून की है जब इसकी जांच की शुरुआत की है, और उसके बाद से ये जो समय है, यदि ये 15 महीने दिन पहले होता तब भी कोई सवाल नहीं उठाता, ये महाधिवेशन के 15 दिन बाद कोई करता तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन ठीक 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, अब परसों से सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब सारे हमारे सीनियर लीडर आएंगे, ऐसे समय में केवल कांग्रेस नेताओं पे छापा डालना ये स्पष्ट करता है कि आप बदनीति से ये छापा डालें, आपकी नियत इस कार्यक्रम को प्रभावित करने का है और बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जिन नेताओं के यहाँ छापा डाले वहां कुछ मिला नहीं, उनके यहां से कुछ जब्त नहीं किए। ये तो बड़े बड़े दावा किए थे करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, और ये नेताओं के यहां से क्या जब्ती करके लाए हैं? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ही है कि आप केवल डराने धमकाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम न करें और ये कार्यक्रम असफल हो जाए, इसलिए ईडी का दुरुपयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ है और जिस प्रकार से उत्सुकता है इस महाधिवेशन को लेके राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे बाधित करने के लिए किया गया है और जो बुरी तरह से असफल हुआ है। लोग समझ गए, लोग आप कह रहे हैं समझ गए हैं, लेकिन ईडी कहता है ये मेगा स्कैम है। अगर सरकार अपना काम कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रही है, इतने बड़े करप्शन को उजागर कर रही है, तो उसमें उनको काम तो करने दिया जाना चाहिए। आप भी तो उन पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगा के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जून से चल रहा है, 8 महीने हो गए एक जांच, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेज हैं, तो इतना समय लगना चाहिए क्या? और यदि आपके पास सारे प्रमाण हैं तो जो गवाही हैं उसे मारने पीटने और उसको धमकाने और उसे प्रताड़ित करने का आवश्यकता क्या थी? सारे लोग लिख लिख के दे रहे हैं, और वो जो आयोजक लिख के दिए हैं कि हमारे साथ 3rd डिग्री व्यवहार किया गया है, और उसको हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि ये इस प्रकार से शिकायतें मिल रही है, और उसमें फिर भारत सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब ऐसे स्थिति में हमारे पास न्यायालय जाने के लिए आपको रास्ता नहीं है, हम न्यायालय भी जाएंगे। की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं जो आप लोग इसको कांग्रेस के प्लेनरी सेशन से जोड़कर देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार दबाव बना रही है, क्योंकि इस तरह के बड़े आयोजनों में पैसा तो बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत होता है, तो क्या कहीं उस पर ये चोट करने की कोशिश की गई थी? सारे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे और हो रहे हैं और होते रहेंगे। आजादी के पहले भी होते थे, आजादी के बाद भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसमें कितना पैसा लग जाएगा भाई, जिसमें इतना इसको महत्व दिया जा रहा है? इसके पहले के अधिवेशन नहीं होते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो उसके अधिवेशन नहीं होते थे कि वो सत्ता में रहेंगे तभी अधिवेशन कर पाएंगे? ये किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री जी ने, जैसा अभी हमने सुनवाया भी अपने दर्शकों को, उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारे ऑपोजिशन को इकट्ठा खड़ा कर दिया है।
उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है कि देखिए ईडी का इस्तेमाल हुआ, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी जो जांच हुई है उसमें सारे ऑपोजिशन पार्टी के जिन लोगों के ऊपर इस समय करप्शन के चार्जेस हैं वो सब इकट्ठे हो गए? देखिए, आप दुरुपयोग कर, सत्ता जनता ने सत्ता दी है इसलिए कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे कार्रवाई करे, लेकिन आप चुन चुन के राजनीतिक दलों के लोगों को आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बदले के भावने से राजनीति कर रहे हैं। जनता ने इसलिए सत्ता नहीं सौंपा, आपको भारी बहुमत मिला है, लेकिन मतलब इसका विरोधी दल के लोगों को प्रताड़ित करें। और यदि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, रोज कार्रवाई करें, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। राजनीतिक दल है, अपने राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी विपक्षी दल को लोगों को जोड़ने का काम करते थे। आज वो सत्ता में है तो कांग्रेस कर रही है। सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आरोप लगता है कि अब आपने ऐसे कहा कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही आरोप कांग्रेस पे भी लगते थे? सीबीआई को केज पैरेट तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें तो उसमें उन्होंने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। आज की स्थिति है, आज तो ये सारे एजेंसी नंगा नाच कर रहे हैं, बेखौफ कर रहे हैं, थर्ड डिग्री का उपयोग कर रहे हैं, और जैसा चाहे मनचाहा उसके दस्तखत करा रहे हैं लोगों से। मैं तो वही कह रहा हूं, उसके आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई करते। 8-8 महीने क्यों लग रहा है भाई? और इन नेताओं के आप छापा मारे, मिला क्या? जब आप 8 महीने से कर रहे हैं, आपके पास तो ठोस तथ्य आना चाहिए। और पूरा ईडी के लोग यहाँ ही बैठे हैं, उनको तो परिवार रखने की छूट मिल गया है छत्तीसगढ़ में कि तुमको चुनाव तक रहना यहाँ, और बातचीत में कहते भी हैं कि हमको तो चुनाव तक रहना यहाँ। तो आपको लगता है 2023 तक आपकी मुश्किलें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? लगातार ये लोग यहीं पर आपके साथ इस तरीके से ही इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, छापे पड़ते रहेंगे? नहीं भाई, 2024 तक के, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर से आ रही है छत्तीसगढ़ में, ये 2024 अप्रैल मई तक रहेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा में एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने उस यात्रा में भाग लिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से ऊर्जा के साथ सारे चुनाव लड़ती दिखाई पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से शायद सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पार्टी को आगे और बढ़ाया जाए, 2024 के लिए कैसे तैयारी की जाए? अब जयशंकर प्रसाद जी क्या बोले हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक अकेले राहुल गांधी जी से सब खौफ खाते हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। यदि राहुल जी की बातों में यदि दम नहीं होता ना, तो इनकी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। और किसी नेता के, किसी पार्टी के नेता के बयान पे प्रतिक्रिया देते हैं क्या ये लोग? एक अकेले कांग्रेस पार्टी है जिसके बयान पे लोग प्रतिक्रिया देते हैं, और अकेले नेता है राहुल गांधी जी जिसके बयान पे पूरा मंत्रिमंडल लग जाता है। एक दो नहीं, अभी जयशंकर प्रसाद बोले हैं, मैं तो देखा हूं कि एक आधा पौन दर्जन मंत्री लोग एक बयान की खंडन का उसके बचाव के लिए आ जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल उतर आता है। सर, लेकिन तो ताकत है राहुल गांधी में। पर वो ताकत क्या जो राज्य अभी चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें नहीं दिखनी चाहिए थी? कांग्रेस को फायदा नहीं होता सर उसमें? पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, और वो लोगों को जिम्मेदारी दी गई, वो लोग वहां हैं। मुझे जहां जिम्मेदारी दी जाएगी मैं जाऊंगा, किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी वो जाएंगे। हर जगह हर व्यक्ति नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब हमसे बात करने के लिए। आपके राज्य में एक बड़ा कांग्रेस का पूरा यह अधिवेशन होने वाला है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एज फार एज you are concerned. You'll be busy with the preparations, but your attack on the Enforcement Directorate and the BJP continues. Thank you so much for joining us here on Breaking Views. Let me very quickly, thank you sir, let me very quickly also turn my attention just to get the other view on this. Joining me now at this moment,
Bharatiya Janata Party MP from Raipur. Mr. Soni is joining us at this moment. Sir, thank you so much for speaking to us. I want to start by asking you, अभी आप भूपेश बघेल साहब को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी को. उन्होंने साफ साफ सवाल उठाया कि ये टाइमिंग है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, हमारे प्लेनरी सेशन से पहले जो किया गया है, ये दर्शाती है कि आप लोग इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं आपकी ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने के लिए. ये अनैतिक रूप से धन एकत्र करने वाले लोग इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भी कहा और अनेक बार अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि लोग राजनीति में काम करने वाले लोग हों चाहे अफसर हों, ईमानदारी से देश की सेवा करें. लेकिन जो लोग धन एकत्र करने के लिए राजनीति में आते हैं या राजनीति को इंडस्ट्री बना लिया है, उद्योग बना लिया, व्यापार बना लिया, ऐसे लोगों को ऊपर में कार्रवाई स्वाभाविक है और होते रहेगी ये. सर, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो रमन सिंह साहब के पास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, उनके ऊपर भी माइनिंग के केसेस में बड़े सारे उनके ऊपर केस रजिस्टर हुए थे, उनके ऊपर तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है. कांग्रेस सीधा सीधा कह रही है, भूपेश बघेल कह रहे हैं, रमन सिंह को क्यों नहीं चिटफंड स्कैम में आप लोग उनको प्रोब करते. पहले तो कम से कम भूपेश बघेल जी उनका जो कांग्रेस के अनन्य नेता है वो पहले खुद ईमानदार हो जाए और फिर उसके बाद में दूसरे के ऊपर में उंगली उठाए. यानी 4 सालों के अंदर में बच्चा जानता है छत्तीसगढ़ का कि ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो. वहाँ पे रेत माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, आपके चरस माफिया, गांजा माफिया, ये सारे लोग जो है एक्टिव हैं. और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है. यह हमारे लिए चिंता की बात है और हम इस बात से दुखी भी हैं कि अपराधी बेखौफ होकर जो है लगातार अपराध कर रहे हैं और लूट का एक मतलब प्रदेश बना दिया इन लोगों ने. सर, 2014 से लेकर अब तक जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने करीब 600 से ऊपर केसेस रजिस्टर किए हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ. उसमें से 570 जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स के हैं. तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ. देखिए, हमारे नेताओं के ऊपर भी ईडी ने जो है सवाल उठाए थे और जांच की थी और बयान लिया था, वो निर्दोष रूप से सामने आ गए. तो डरने की क्या जरूरत है? अगर आप निर्दोष हो और आपने अनैतिक धन एकत्र नहीं किया है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं. वहाँ पे ईडी के कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, जहाँ जाना है वहाँ पे जाइए. कोई जबरदस्ती इस देश के अंदर में किसी को जेल में नहीं डाल सकता. क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी बड़े सारे केसेस हुए थे. कुछ आपको मैं थोड़ी याददाश्त आपकी ताज़ा करा देता हूं. बीएस येदियुरप्पा साहब जो हैं उनके खिलाफ बड़े सारे केसेस थे. सीबीआई उस पर केस कर रही थी, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है. रेड्डी ब्रदर्स जो हैं बिल्लारी वाले, उनके खिलाफ सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया है. हिमंता बिस्वा शर्मा का मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जब वो बीजेपी में आ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई रुक गई. शिवराज सिंह चौहान को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी व्यापन केस में. रमेश पोखरियाल के खिलाफ कोई प्रोब नहीं हुआ है. नारायण राणे बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस है वो रोक दिए गए. शुभेंदु अधिकारी नारदा केस में अक्यूज थे, बीजेपी में आए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही. तो कैसे ना मान लिया जाए कि सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ तो बड़ी तत्परता दिखाती है इस ईडी और सीबीआई, लेकिन बीजेपी के जब नेता होते हैं तो इसीलिए बार बार कांग्रेस कहती है व्हाइट वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है, बीजेपी में आइए सारे केस छुड़वाइए. नहीं, ये भ्रम फैलाने वाली बात मानता हूं. ये जांच एजेंसियां जो है ये निष्पक्ष रूप से काम करती है, ये सरकारों पे आश्रित नहीं है. और अब तो जितना निष्पक्षता के साथ में जांच एजेंसी काम कर रही है ये पहले नहीं था. और पहले सीबीआई को हम लोग भी आरोप लगाते थे कि ये पिंजरे का पंछी है करके, और इसका और उस समय प्रताड़ित होते थे. भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होते थे, बहुत सारी पार्टियों के लोग होते थे. लेकिन अभी ऐसा नहीं है और ऐसे अनेक कानून के रास्ते खुले हुए हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है.
अगर वो निर्दोष है तो जाते क्यों नहीं है? Okay, thank you so much for joining us on the broadcast, sir. As promised, ladies and gentlemen, we try to bring both sides of the story. You heard the Chief Minister, you heard the MP from the Bharatiya Janata Party, but as he was saying, when the Congress was in power, there were allegations of them misusing the agencies. Now the same, accusations on the Bharatiya Janata Party. That raises the moot questions. Are the agencies in this country working free and fair? Are they only following the evidence, or is it just a tool for political arm twisting? Thank you so much for being with us on Breaking News tonight. News and updates continue on NDTV.